me. I hope there will be no problem of voice. So let's start. This is lecture number 8, and it's about semantics. What is topic? What is ambiguity? So, have you ever heard this word ambiguity? Have you ever heard this word? This is your fourth semester. Have you ever heard this word ambiguity? अभी किसी ने इस वर्ड के बारे में सुना हो? नो वन यस और नो में जवाब दें, नहीं तो फिर भी बता दें, और अगर सुना है तो फिर भी बता दें, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. Okay, so what is ambiguity? Remember, ambiguity is the state of having more than one possible meaning. When a sentence has more than one sentence or clause has more than one meaning, that is called ambiguity. These meanings may be different from each other and have no close schema in common. Means they have nothing to do with, they are not in common. You cannot find that their meanings are common to each other, and they will be different from each other. And that is why a single expression, when we have ambiguity in a sentence, so a single expression may lead to multiple interpretations. यानी कि एक जो single आपके पास expression होगा, वो एक से ज़्यादा interpretations उस पर की जा सकती है. I don't know, do you remember or not? In the previous classes, I once mentioned this thing that in literature there are many things which we use. जब हम लोग लिटरेचर यानी कि कोई नॉवेल लिख रहा है या शायरी कर रहा है या कोई और फॉर्म ऑफ लिटरेचर को यूज़ कर रहा है, तो इन different forms of literature like poetry, fiction, and novel, short story, what do the writers do? They use different types of techniques in their writing so that they can captivate or they can attract the attention of their audience. तो बाज़ औक़ात राइटर्स जो हैं जानबूझकर एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं अपनी राइटिंग में, सो दैट इट हैज़ मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस, ताकि उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकले. अच्छा, ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए भी एम्बिग्विटी का इस्तेमाल किया जाता है. अ लॉट ऑफ ह्यूमर डिपेंड्स ऑन एम्बिग्विटी. ह्यूमर मीन्स मज़ाक, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, मज़ाक क्रिएट करना. तो उसके लिए भी यू विल फाइंड दैट पीपल यूज़ or writers use ambiguity in their sentence, and by doing this thing they create humor and they make people laugh. तो लोगों को हंसाते भी है इस तरह से. So a single expression may lead to multiple interpretations by using ambiguity. फिर इसमें क्या है कि incorrect choice of words, sometimes it happens that we use words which are not correct, जो कि correct नहीं होते. So incorrect choice of words also leads to ambiguity. उससे भी ambiguity जो है वो create होती है फॉर द रीडर. मतलब आप जो है वर्ड्स का चॉइस अगर सही नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, न सिर्फ स्पोकन रिटन में बट ऑल्सो इन स्पोकन यू मे क्रिएट एम्बिग्विटी फॉर द रीडर्स, फॉर योर रीडर्स. जो आपके रीडर्स उनके लिए आप एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकते हैं. सो दे हैव टू चेंज सम ऑफ द वर्डिंग इन द डॉक्यूमेंट. सो व्हाट हैपेंस देन, होता ये कि समटाइम्स वी हैव टू चेंज. Now here, sometimes we have to change some of the wording in the document to resolve the ambiguity. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ जो है वर्डिंग्स को चेंज करना होता है. जो उसके वर्डिंग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हमने चेंज करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के, अपने जो भी हमने लिखा उसके, टू सॉल्व दिस एम्बिग्विटी, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है, ये जो अनक्लियर थिंग्स है, ये सॉल्व हो जाए. तो ambiguity क्या है? It is, ambiguity is a term that is used to characterize the phenomena that have more than one possible meaning. जब आपके पास जब कोई जुमला हो या कोई phrase हो और उसकी एक से ज़्यादा meaning हो. Remember once again, if we have a sentence or phrase which has more than one meaning, so that state, ये जो एक state है, ये जो एक हालत है उस जुमले की, यानी कि उसके एक से ज़्यादा जो meaning है, उस state को ambiguity कहा जाता है. और वो जुमला जो होता है एम्बिगुअस बन जाता है. क्या बन जाता है वो? एम्बिगुअस. यानी वो जो स्टेट है उसको एम्बिग्विटी कहते हैं और जुमले को एम्बिगुअस कहा जाता है. एम्बिग्विटी इज अ नाउन एंड एम्बिगुअस इज एन एडजेक्टिव. फिर दोबारा जो मैंने बताया था कि दीज मीनिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और इसी वजह से एक जुमले की या एक एक्सप्रेशन की कई तशरीहात हो सकती हैं. देयर मे बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ वन सेंटेंस.
फिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कौन करता है, ये भी मैंने आपको बताया कि कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है गैर दानिस्ता तौर पे, हमें पता ही नहीं होता, हम लोग जुमले एम्बिगुअस बना देते हैं, ठीक है। जिसको पता होता है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इफ समबडी हु नोज एम्बिग्विटी, उसको पता है कि, तो वो इसका इस्तेमाल क्यों करता है, क्यों समटाइम दैट पर्सन यूजेस इट फॉर ह्यूमर, लोगों को हंसाने के लिए, मजाक, जैसे हम कहते हैं ना मजाक के जरिए लोगों को हंसाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात हमारी अपनी गलती की वजह से जो है इसमें एम्बिग्विटी क्लियर हो जाती है। Remember, it is very important to avoid ambiguity in formal writing. If you are writing in the exams, अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हैं, यानी इम्तिहान में आप लिख रहे हैं, किसी के पेपर में भी लिख रहे हैं, कोई से भी इम्तिहान में आप लिख रहे हैं, so you must avoid ambiguity, क्योंकि आपके ambiguity की वजह से या आपके ambiguous sentences की वजह से आप नेगेटिव आपके जो है मतलब ये कि आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। राइटर उसका नेगेटिव मीनिंग भी समझ सकता है, ठीक है, बिकॉज यू हैव ओपन टू मीनिंग्स ऑफ योर सेंटेंस, ऑफ योर एक्सप्रेशन, ऑफ योर पैराग्राफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या पता राइटर नेगेटिव समझ, टीचर नेगेटिव मीनिंग ले ले। इसी तरह से इफ यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन और लेटर और एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, so and you are using ambiguous sentences, so you are creating problem for your reader। आपका जो भी रीडर होगा, जो भी पढ़ेगा, उसको समझ में चीज़ क्लियर नहीं आएगी, फिर वो उसको पढ़ेगा नहीं, और इस तरह से आपने जो लिखा वो ज़ाया हो जाएगा। Is this clear? So ambiguity is something। अब आपको थोड़ी चंद एक मिसाल दे रहा हूँ, देन इंशाल्लाह आई विल टेक यू टू हैंडआउट्स, और ये हैंडआउट्स इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सेंड भी कर दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा। इसके अलावा मैं एक दिन बीच में आऊँगा भी, और ये इनकी हार्ड कॉपीज में मिस फरियाल को देके जाऊँगा, ताकि वो आप लोगों को दे दें और आप उनको लेकर पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना तो आपने भी शुरू कर दिया होगा, बिकॉज यू विल हैव इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट। एग्जाम्पल में आपको मैं इस वक्त चंद एक एग्जाम्पल अभी फिलहाल पेश मैंने किए। शी कांट बियर चिल्ड्रन। अब आपके सामने ये जुमला है, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यस सरियम, शी कांट बियर चिल्ड्रन, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आप में से कोई इस जुमले का मतलब बता सकते हैं कि शी कांट बियर चिल्ड्रन, ये आपके पास एक जुमला है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? अगर अंग्रेजी में नहीं समझ आ रही तो आप उर्दू में बता दें, मीनिंग डजंट मैटर, इट्स ऑल राइट। सर इस सेंटेंस के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि एक मीनिंग ये हो सकता है कि जो खातून है, शी है, तो मतलब कोई लड़की की बात हो रही कि मतलब ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा मीनिंग इसका ये हो सकता है कि मतलब कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजीद बच्चे पैदा करना जो है वो उसके बस में नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। सो शी हैज गिवन द राइट आंसर। फर्स्ट मीनिंग इज दैट शी कांट पुट अप विद। पहली इसकी मीनिंग क्या है? पहली जो इसकी मीनिंग है मैं आपको सामने लिख देता हूँ। पहली इसकी मीनिंग है शी कांट पुट अप विद। पुट अप विद मींस टॉलरेट चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चों को टॉलरेट नहीं कर सकती है, बच्चे शोर करते हैं और मतलब ये तंग करते हैं, तो वो शी कांट पुट अप विद चिल्ड्रन, ये पहली मीनिंग है। दूसरी मीनिंग क्या है? शी कांट गिव बर्थ टू, शी कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब शी कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, वो मजीद जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, ये इसकी सेकंड मीनिंग है। अब ये जुमला आइसोलेशन में, यानी कि इसके ना आगे कोई जुमला है ना पीछे कोई जुमला, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है, एक अलग सा जुमला है। और मैंने गालिबन आपको एक इन प्रीवियस क्लासेस में भी बताया, आई डोंट नो, लाइव क्लासेस अटेंड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग लाजमी वीडियो और जो भी है वो पूरा देख लेते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन अगर वीडियोज़ अगर हो तो उसको फिर सुनना पड़ता है, और ज़ाहिर है ये 5-5 मिनट की वीडियोस तो है नहीं कि आप उसको जल्दी सुन लेंगे, तो ये 30, 35, 40 मिनट तक की, 35 मिनट से ज़्यादा या कम तक की होंगी, तो आपने उनको पूरा सुनना होता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। तो मैंने आप लोगों को बताया था, कोई अगर आपसे कहे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन वर्ड, ये आपके पास एक वर्ड है, कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों ने क्या जवाब देना है इसके बारे में? Just use it in sentences, then I'll tell you. Use it in a sentence, then I'll tell you, ये आपका जवाब होना चाहिए। अगर आपने कह दिया इसका जवाब है, इसका माना होगा जाना,
तो वो कुछ और जुमले में इस्तेमाल कर देगा जहाँ इसका मतलब नहीं होगा। वो ये कह देगा 2 balls to go, कहाँ पे जाना इसमें, आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी अगर आपको कोई भी वर्ड पूछे आइसोलेशन में तो आपने क्या बोलना है, यूज इट इन अ सेंटेंस देन आई विल टेल यू, ये तो आपका जवाब होगा। इसी तरह से जब आपके पास एक जुमला आएगा, जैसे आपके पास ये जुमला है, दिस इज अ वन सेंटेंस, इट हैज नाइदर बिफोर एनीथिंग नॉर आफ्टर एनीथिंग, सो इट इज इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में। इसीलिए अब इसके यहाँ पे क्या है, डबल मीनिंग हमें मिल रही है, इस वजह से कि इसके आइसोलेशन में कुछ नहीं। अगर ये जुमला कॉन्टेक्स्ट में होता तो फिर हमें पता चल जाता है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मीनिंग और सेकंड मीनिंग। आई एम पहले वाली की बात कर रहे हैं, शी कांट पुट अप विद चिल्ड्रन, और वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, शी कांट गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि ये अलग से है आइसोलेशन में, इसीलिए हमें ये चीजें पता नहीं चल रही। देयर आर टू मीनिंग्स, तो इसमें क्या है, दो मीनिंग्स है, एंड दिस इज कॉल्ड एम्बिगुअस। इसीलिए जुमला जो है एम्बिगुअस है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी कौन सी मीनिंग हम ले, आया पहले वाली मीनिंग ले या सेकंड मीनिंग ले। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी जगहों पे आपको एम्बिग्विटी मिलेगी, और समटाइम वी आर वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल राइटिंग, जैसे आप किसी जगह कोई अपने पेपर जमा करवा रहे हैं, और इफ यू आर सबमिटिंग इन एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों में अगर एम्बिग्विटी हुई तो समझ लें आपकी तो एप्लीकेशन और ये चीज़ें वैसी कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्बिगुअस चीज़ों को लोग नहीं पढ़ते। लिटरेचर में अगर एम्बिग्विटी है तो चलो वहाँ तो बात समझ आ रही है, क्योंकि उसको पढ़ने वाले बहुत होते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इन रियल लाइफ वी शुड ट्राई टू अवॉइड एम्बिग्विटी, एंड समटाइम वी नीड, सो वी कैन क्रिएट इट। फिर दूसरा जुमला है आपके पास, डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, इसमें आपको क्या एम्बिग्विटी नजर आ रही है, इज इट क्लियर? इंटरेस्ट दो मरतबा रिपीट हुआ है, डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, इज दिस सेंटेंस क्लियर? कोई इस हवाले से बताएगा कि डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, इज दिस सेंटेंस क्लियर? Now you can see here it has one word repeated, but remember first interest is used as a noun, second interest is used, both are used as a noun। ये दोनों जो है इंटरेस्ट के वर्ड से नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए, लेकिन फर्क इतना है कि पहले वाले का जो मीनिंग है वो क्या है, इट मीन्स इन आवर कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव मीनिंग, डू यू टेक इंटरेस्ट। सेकंड वन इज नेगेटिव इन आवर कॉन्टेक्स्ट, दूसरे वर्ड का मतलब क्या है, सूद। डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, आप किसी से मजाक कर रहे हैं, आपने कहा डू यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, वो यही समझा कि आपको दिलचस्पी में दिलचस्पी है, उसने कहा यस आई टेक। बाद में आपने क्या कर दिया, बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए भी एम्बिगुअस सेंटेंस रख लेते हैं, और उसके बाद उसकी गलत दूसरी इंटरप्रिटेशन पे दे रहे हो, देखो यार इसकी ये माने, और वो बंदा फंस जाता है। तो ड्यू टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, इसका मतलब ये कि क्या आपको सूद में दिलचस्पी है, कि आप सूद लेते हैं, ये इसका मतलब। अगर आप कहते हैं यस आई टेक, तो इसका मतलब आप लेते हैं। आपके जहन में हो सकता है वो ना उस दूसरी मीनिंग ना हो इंटरेस्ट की, आप इंटरेस्ट की पहली मीनिंग को जहन में रखते हुए बोले हाँ यस आई टेक इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, सो हियर इट इज ऑल्सो एम्बिगुअस। फिर थर्ड सेंटेंस है, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड सॉ अ बैट इन द बुशेस। ठीक है, अब ये जो बेट है ये आपके पास लेक्सिकल लेवल का जो है एम्बिग्विटी है, बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर लेवल स्ट्रक्चर टाइप का होता है, बाज़ औक़ात जो है वर्ड टाइप का की एम्बिग्विटी होती है। यहाँ पे आपके पास वर्ड टाइप की एम्बिग्विटी है। ये जो वर्ड है बेट, इट इज एम्बिगुअस, व्हाई, बिकॉज इट हैज टू मीनिंग्स। वन मीनिंग इसकी क्या है, क्या होगी इसकी, अगर कोई कहता है कि यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड सॉ अ बेड इन द बुशेस, तो आपके जहन में क्या चीज आएगी, रेड, बेड, बेड, BAD, बेड। तो आपके जहन में क्या चीज आएगी, क्या देख लिया, एक्चुअली बैट कहते हैं चमगादड़ को, और बैट कहते हैं बल्ले को भी, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, बैट चमगादड़ को भी कहते हैं, एंड बैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो आप अगर कहते हैं यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड सॉ अ बेड इन द बुशेस, सो इससे अब एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई कि यार क्या देखा है, चमगादड़ को देखा बुशेस में या बैट को देखा, क्योंकि दोनों चीज बुशेस में हो सकती है। बल्ला जो है, बैट जो है वो भी झाड़ियों में पड़ा हुआ मिल सकता है, चमगादड़ भी हो सकती है वहां पर। ठीक है, अब ये जो है एम्बिगुअस सेंटेंस है, और यहाँ पे एम्बिग्विटी है। तो इस तरह से बहुत सारे जुमले आपको मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, आपको अपने लिटरेचर में बहुत सारे मिल जाएंगे, where you can find ambiguity. Okay,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी। फिर मैं आपको हैंडआउट से ही बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि क्या है हमारे पास। तो काइंड्स ऑफ इफ यू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी, सो वी कैन फाइंड लेक्सिकल एम्बिग्विटी, जो कि वर्ड लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है? वर्ड लेवल पर, जो इसका ताल्लुक वर्ड से होता है। इसी तरह से इसके बाद जो है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, इसका ताल्लुक होता है स्ट्रक्चर से। ट्रांसफॉर्मेशनल एम्बिग्विटी और स्कोप एम्बिग्विटी, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स और काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी वी विल डिस्कस नाउ। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे हैंडआउट्स पर, तो ये आपको इंशाल्लाह मैं भेज भी दूंगा। आई विल सेंड यू दिस हैंडआउट। कैन यू सी नाउ दिस हैंडआउट? नजर आ रहा है सबको? कैन एवरीवन सी दिस हैंडआउट नाउ? यस सर। या ये आप लोगों को भेज भी दूंगा। आई विल सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस वन, और मैं बीच में इंशाल्लाह आऊँगा तो उसमें आप लोगों को हार्ड कॉपी भी देके जाऊँगा, जो आप लोग खुद से कॉपी करवा लीजिएगा। आप लोग कितने दिन आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में? हाउ मेनी डेज आर यू कमिंग? ऑल 5 days और 3 days? 2 days सर सर। 2 days। 2 days, हाँ। बस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द SOPs जो है बड़े सख्त किस्म के, इसी वजह से वो कुछ बहुत से टीचर्स को जो ऑनलाइन ले सकते हैं उनसे कहा गया कि आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करें, और जो जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो उनसे कहा गया कि आप लोग आ जाएं। तो वी मे फेस दिस सिचुएशन फॉर द 6 or 4 months मोर। तो जब तक नई वैक्सीन बनकर नहीं आ जाती और ये सर्दियों का पीरियड नहीं निकल जाता, मेरा नहीं खा कि इससे हम बाहर आ पाएंगे। तो बहरहाल एनी हाउ मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगा, और हार्ड कॉपी भी बीच में एक दिन मैं आऊँगा तो आई विल डेफिनेटली सबमिट इट to Miss Faryal. So you can collect from Miss Faryal, and she will give it to you, and you can get these copies. और इसके अलावा मैंने आपको बुक भी बुक भी दी है, उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा काइंडली। उर्दू बाजार से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बहुत मुश्किल से मिलती है सेमेंटिक्स की चीज़ें, बिकॉज सेमेंटिक इज़ नॉट वेरी taught everywhere, हर जगह ये पढ़ाई नहीं जाती। इट इज़ टॉप सब्जेक्ट विच इज़ नॉट टॉट एवरीवेयर, बिकॉज टीचर उसके लिए अवेलेबल आसानी से नहीं होता। तो ये कि आपको एक जो किताब मैंने आपको इमेज भेजी वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि उर्दू बाज़ार में एक शॉप है ज़मीर बुक शॉप, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, और हैंडआउट में आपको भिजवा दूंगा। Now you can see ambiguity is a term used to characterize phenomena that have more than one meaning। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपके पास है मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन भी करूँगा। ambiguity is similar to vagueness. Vagueness, except the ambiguity refers to something having multiple possible meaning. Vagueness किसे कहते हैं? Vagueness कहते हैं जहाँ पे हमारे पास चीज़ें क्लियर नहीं होती। हम उनको ये भी कह सकते हैं no clarity. So it is similar to vagueness. Vague meaning, unclear meaning. While vagueness refers to a general lack of clarity, जबकि vagueness जो है वो general lack of clarity की बात करती है, यानी कि जो चीज़ generally clear ना हो, आप उसको बिल्कुल unclear कहते हैं। Something vague might not have any clear meaning, while something ambiguous, लेकिन जो ambiguous होता है, something ambiguous might have several possible meanings। तो इन दोनों में vagueness में ये जो आपके पास टर्म है vagueness, इसमें मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ इसमें। और ये जो आपके पास है एम्बिग्विटी और एम्बिगुअस, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एम्बिगुअस जो चीज़ होती है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं, जबकि वेगनेस जो चीज़ होती है वो अनक्लियर होती है, लैक ऑफ क्लैरिटी उसमें होती है। लेकिन दोनों ही बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होते, लेकिन फ़र्क इतना है, दोबारा बता रहा हूँ कि वेगनेस में चीज़ें क्लियर नहीं होती और एम्बिग्विटी में जो है एक से ज़्यादा मीनिंग्स की वजह से वो क्लियर नहीं होती। नाउ लेक्सिकल एम्बिग्विटी, जो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। The most important that we should remember is lexical ambiguity. Lexical ambiguity क्या है? It is concerned with multiple interpretations of lexemes. Lexemes कहते हैं words को। It is concerned with multiple interpretations of lexemes or meanings. ठीक है? A word is ambiguous if it involves, ये जरा जो underline कर रहा हूँ उनको kindly आपने ज़्यादा focus करना है। A word is ambiguous if it involves 2 lexical items that have identical forms but have distinct unrelated meanings। क्या कह रहे हैं कि a word is ambiguous, यानी कि कोई भी word जो है ambiguous हो सकता है if it has more than 2 lexical items, अगर उस पर एक से ज़्यादा lexical items यानी कि word level पे
उसकी एक से ज़्यादा शक्लें हों, that have identical forms but they are different, मीन्स अनरिलेटेड मीनिंग्स, यानी कि उसकी एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी की बहुत सारी मिसालें हैं। अ क्लियर कट वन इज द लेक्सिकल लेक्सिम बॉल, BALL बॉल। बॉल की किसी को मीनिंग पता है? एक मीनिंग तो सभी को पता होगा, क्या है वो? तो बॉल की मीनिंग क्या है? This word may either be denote the round object which is used for several sports। जैसे गोल सी कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, जैसे हम कह सकते हैं फुटबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये क्या है? बॉल। इसके अलावा बॉल किसे कहते हैं? इट कैन रेफर टू अ लार्ज फॉर्मल डांसिंग पार्टी, ठीक है, आपने लिटरेचर पढ़ा तो होगा, लार्ज फॉर्मल डांसिंग पार्टी, टेल्स ऑफ द डिवर विलेज में आपने पढ़ा होगा बॉल। तो एक बड़ी सी फॉर्मल डांसिंग पार्टी को भी बॉल कहा जाता है। बोथ फॉर्म्स आर आइडेंटिकली रिटन एंड प्रोनाउंस, बट इन दोनों को लिखा भी एक जैसा जाता है और पढ़ा भी एक जैसा जाता है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन भी इन दोनों वर्ड की एक ही है। बॉल की प्रोनाउंसिएशन भी दोनों जगह एक ही है और लिखा भी एक ही तरह से जाता है, बट जस्ट एक्सीडेंटली शेयर द सेम फॉर्म, दोनों की फॉर्म एक ही है। बॉल इन द सेंस ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट इन द ओल्ड नोट्स, फिर बता रहे, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है? when they are used their meanings are different। एक में इसकी मीनिंग है डांस पार्टी, डांसिंग पार्टी, फॉर्मल डांसिंग पार्टी, और दूसरी में इसकी मीनिंग है फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इसी तरह से एक और जगह आपके पास अनदर एग्जांपल बाय, एक इन्होंने एग्जांपल दिए, इज द फॉलोइंग सेंटेंस। उस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? यू शुड हैव सीन द बुल वी गॉट फ्रॉम द पॉप। ये एक जुमला है, यू शुड हैव सीन द बुल वी गॉट फ्रॉम द पॉप। अब ये जुमला भी एम्बिगुअस है, क्यों? बुल की वजह से। बुल का क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल मी राइट नाउ द मीनिंग ऑफ बुल? द मीनिंग ऑफ बुल काइंडली, इसको बगैर देखे बता दें। बुल का जो मतलब जहन में आ रहा है क्या है? बुल का हमारे पास जो जहन में आ रहा है वो मेल एनिमल ही है, ठीक है, जिसको हम भैंसा कहते हैं। सो दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस, व्हाई? बिकॉज द वर्ड बुल, ये जो वर्ड जो है बुल, इट मे स्टैंड फॉर सेवरल डिफरेंट थिंग्स, लाइक आइदर अ मेल एनिमल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, एक से ज्यादा काइंड्स के मेल एनिमल्स होते हैं, और आ स्वेयर वर्ड, और एक गाली का लफ्ज भी है, और एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एन मेल एनिमल, a swear word और an official order और statement from the pope। ये जो पॉप होते हैं क्रिश्चियन रिलीजन में पॉप होते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, उनको भी ये ऑफिशियल ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या स्टेटमेंट के लिए भी बुल का इस्तेमाल वर्ड किया जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें बता रहे हैं तो इसको हम पता क्या चलेगा? तो मैंने आपको गालिबन डिक्शनरी का भी हवाला दिया था, अगर आपको याद हो। ये सब चीज़ें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहता हूँ, ये आप लोग को अपने इस्तेमाल में लानी होगी। ये देखिए, ये मैं बुल को यहाँ टाइप कर रहा हूँ and you can see its meaning। बुल की पहली मीनिंग क्या है? द मेल। कैन यू सी द डिक्शनरी? यस सर। द मेल ऑफ एनी एनिमल इन द काउ फैमिली, ठीक है, काउ फैमिली की कोई भी एनिमल है उसको बुल कहते हैं, जो वगैरह बुलक, काउ, ऑक्स, टियर। फिर दूसरी मीनिंग है द मेल ऑफ द एलिफेंट, वेल एंड सम अदर लार्ज एनिमल, उनको भी बुल कहा जाता है, ठीक है, बुल, एलिफेंट। फिर तीसरी मीनिंग क्या? अ पर्सन हु बाइज शेयर्स इन अ कंपनी होपिंग टू सेल देम सून आफ्टरवर्ड्स एट अ हायर प्राइस, उसको भी बुल कहा जाता है। फिर चौथा है एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉप। पॉप जो है रोमन कैथोलिक चर्च में जो पॉप होते हैं, इनके सबसे बड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुफ्ती साहिबान होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इनके यहाँ जो है पॉप होते हैं सबसे बड़े। तो उनकी जो ऑफिशियल ऑर्डर या स्टेटमेंट होते हैं उसको भी बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुल। जैसे आप पापल बुल, तो ये उसकी चौथी मीनिंग होगी। फिर आइडियाज, स्टेटमेंट्स और बिलीव दैट यू थिंक आर सिली और नॉट ट्रू, उसको भी बुल कहा जाता है। तो ये कितने सारे मीनिंग्स आपके सामने आ गए। और एक मीनिंग इसका है भी, द सेंटर ऑफ द टारगेट दैट यू शूट और थ्रो, एट इन शूटिंग, उसको भी बुल कहा जाता है। तो इन मीनिंग किस वजह से क्या हुआ है कि आपका जो जुमला है, योर सेंटेंस इज समथिंग दैट बिकम्स योर एम्बिगुअस, तो आपका जुमला जो है वो क्या हो जाता है? एम्बिगुअस बन जाता है। इज दिस क्लियर?
सो मेल एनिमल और ये सारी इसकी मीनिंग है, तो इससे क्या हुआ, जुमला एम्बिगुअस हो गया. सो एज एम्बिगुइटी इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, लेक्सिकल डिसएम्बिगुएशन is quite easy in most cases when considering previous expectations. So मैंने आपको भी बताया था कि जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बाज़ औक़ात नहीं होती, ठीक है, बाज़ औक़ात कॉन्टेक्स्ट भी से भी क्लियर नहीं होती, और अक्सर औक़ात बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थिंग्स बिकम क्लियर. तो लेकिन लेक्सिकल एम्बिग्विटी अपनी जगह बाज़ औक़ात बरकरार रहती है. बाज़ औक़ात हम ये तो चलो बोल रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना ही होता है, बट देयर आर मेनी अदर वर्ड्स where we have substitute, जहाँ पे हमारे पास substitute भी होता है, लेकिन हम लोग substitute को इस्तेमाल नहीं करते, and we create unwillingly ambiguity, and this is not good. फिर उसके बाद आपके पास है मजीद, when a word has multiple meaning, this is called polysemy. ये जो आपको बता चुका हूँ. Nearly all words in English are polysemous. तकरीबन अंग्रेजी में आपको अक्सर words, तकरीबन सारी words या majority of the words you will find polysemous. Why? Because they have more than one meaning. उनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, और यही का चीज़ें जो है एम्बिग्विटी क्रिएट करती हैं. मीनिंग दैट मैनी सेंटेंसेस हैव सेमेंटिक एम्बिग्विटी. जिससे उससे मुराद ये भी हो सकता है कि बहुत से जुमलों में सेमेंटिक एम्बिग्विटी आ जाती है. वी कैन यूजुअली रिजॉल्व द एम्बिग्विटी यूजिंग कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. वी कैन यूजुअली रिजॉल्व द एम्बिग्विटी यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, बट समटाइम्स दिस डजंट वर्क, और कभी कभार ऐसा नहीं होता, जो आपको बता चुका हूँ कि कभी कभार वो कॉन्टेक्स्ट भी उस मसले में का हल नहीं होता. द वर्ड प्ले इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेमी. ये जो आपके पास एक वर्ड है प्ले, PLAY, प्ले, ये पॉलीसेमी की एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, यानी कि इसके बहुत सारी मीनिंग्स हैं. इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेमी. यू कैन प्ले अ रोल, आप रोल को प्ले कर सकते हैं. प्ले अ गिटार, प्ले अ गेम, प्ले द फूल. ठीक है, ये सारे आप प्ले कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्ले. All these things you can play. In most contexts, you wouldn't have any, or you will not have any question about which one you are talking about. बहुत सारे आपके पास context में you will not have any question about which one you are talking about. But if you are hanging out with both a guitar and an MP3 player, and someone asks you to play some music, it would be ambiguous. ठीक है, और अगर कोई आपसे कहता है कि यार कोई someone asks you to play some music, यार कुछ म्यूजिक चला दे, तो आप फंस जाएंगे. फिर इट विल बी एम्बिगुअस. अब आप म्यूजिक में क्या चलाएंगे, MP3 चलाएंगे, या आप म्यूजिक की और कैटेगरी कोई होगी तो उसमें आप फंस जाएंगे. तो ये जो आपके पास वर्ड है प्ले, इसके बहुत सारी मीनिंग्स है, और इन मीनिंग की वजह से ये सेमेंटिक एम्बिगुइटी क्रिएट कर सकता है. तो उसके बाद मजीद आगे आपके पास देखिएगा, the most classical example of lexical ambiguity is bank, 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 बैंक का क्या मतलब है? What is the meaning of bank? अब आप लोग के ज़हन में जो मीनिंग है वो क्या है बैंक के? हरी टाइम इज रनिंग आउट, सॉरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? जो ज़हन में हमारे पास मीनिंग आती है वो क्या है कि एक बैंक एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे हम जाते हैं और अपने पैसे जमा करवाते हैं या बिल जमा करवाते हैं, या इस तरह से वहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह होती है. दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर माइंड. फॉर एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल, तो यहाँ पे बैंक का आपके पास क्या है कि इट इज़ ऑल्सो अ साइड ऑफ अ रिवर. ये किसी दरिया का किनारा भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. ये लेक्सिकल एम्बिग्विटीज़ की है, आप लोग इसे पढ़िएगा तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड मेनी थिंग्स. फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी. स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी का ताल्लुक स्ट्रक्चर से होता है. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ 2 or more different syntactic structure that can be attributed to one string. That means that a sentence is structurally ambiguous not because it contains a. अब इसमें कोई एक वर्ड ambiguous नहीं होगा, वो जुमला ambiguous होगा. मिसाल के तौर पर young boys and girls love the adventure playground. क्या कह रहे हैं? Young boys and girls love the adventure playground. तो इसमें मसला क्या है? This sentence is syntactically ambiguous. इसमें syntactically ये आपके पास ambiguous है. क्यों? The reference of young is unclear. ये जो reference जो है young को दिया ना, ये young, ये unclear है. There are 2 possible interpretations of the subject. It may be either be that young boys and girls love the adventure playground, or young boys and girls love it. Young boys and girls. दोबारा देखिएगा, ये बहुत बारीकी है इसमें. Either young boys and girls, यानी कि boys तो young है लेकिन लड़कियां young नहीं है. ठीक है, एक तो मीनिंग ये हो रही है young boys but girls are not young.
तो यंग बॉयज क्या कह रहे हैं, इट मे अदर बी दैट यंग बॉयज एंड ओनली गर्ल्स लव द एडवेंचर प्लेग्राउंड, और यंग फिर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि दोनों यंग जो है यंग और अलग करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स लव इट। तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स लव द प्ले एडवेंचर प्लेग्राउंड। तो इसमें दो है, यानी एक में आप देखिएगा कि जो पहले सेंस आ रहा है कि लड़के तो यंग है लड़कियां यंग नहीं है, दूसरे में यह है कि यंग जो है दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। So the structural analysis shows that the sentence may be interpreted in a way that young only refers to the boys, or it may be understood as characterizing the boys as well as the girls. तो ये दो तरीके से आपके पास सामने आता है कि या तो यंग का इस्तेमाल बॉयज़ के लिए किया गया, या दूसरा उसमें कि यंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। इसी तरह से आपके पास है फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, यहाँ भी स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी? यहाँ पे क्या आपके पास है, नॉम चॉम्स्की ने इसको की तरफ से आया कि सेंटेंस दैट कंटेन्स लेक्सिम दैट चेंज देयर वर्ड फ्रॉम और इवन वर्ड क्लास डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस इंटरप्रिटेशन। फ्लाइंग प्लेन्स का मतलब एक तो ये है कि जो हवाई जहाज है वो उड़ रहे हैं, उड़ते हुए जहाज खतरनाक हो सकते हैं। इसका एक मतलब ये आ रहा है कि उड़ते हुए जहाज खतरनाक हो सकते हैं। फ्लाइंग प्लेन्स इन दिस एग्जांपल मे बी कंसीडर्ड अंडरस्टूड टू फ्लाई प्लेन्स, ठीक है, यानी एक जगह एक जो इसका माना समझ आ रहा है कि जहाज उड़ रहे हैं, फ्लाइंग प्लेन्स, ठीक है। दूसरा इसका जो है वो क्या है कि जहाज को उड़ाना, दूसरा इसका माना है क्या है, फ्लाइंग प्लेन्स मींस टू फ्लाई प्लेन्स कैन बी डेंजरस। तो एक जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, फ्लाइंग प्लेन्स यानी कि उड़ते हुए जहाज, ठीक है। और दूसरा जो है वो इस्तेमाल ऐसा लग रहा है कि जेरेंट के तौर पे हो रहा है, फ्लाइंग प्लेन्स मीन्स टू फ्लाई प्लेन्स। तो इसकी भी दो आपके पास मेन इंटरप्रिटेशन आ रही है। एक का मतलब है जहाज जो है उड़ते हुए जहाज उड़ते हुए ही होते हैं, उड़ते हुए जहाज खतरनाक हो सकते हैं, और दूसरा इसका मीनिंग है जहाज को उड़ाना जो है खतरनाक हो सकता है। तो फ्लाइंग प्लेन्स here is giving us two different interpretations. इसके बाद एक और चीज आपको दिखा रहा हूँ, उससे आगे बढ़ूंगा, टाइम इज वेरी शॉर्ट। इसमें आपको यह वाली मिसाल देना चाह रहा हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस, ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस। अब ये एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस। क्या इसमें बात कही जा रही है कि दिस इज एन एग्जांपल सिमिलर टू द फर्स्ट वन ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस एंड देयरफॉर मे बी आइदर अंडरस्टूड एज ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस और ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस यानी कि खूबसूरत लड़की का जो ड्रेस है वो, या इससे मुराद हो सकती है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस यानी कि लड़की का जो पहले उसमें मीनिंग है कि खूबसूरत लड़की का ड्रेस, दूसरे में उसमें मीनिंग क्या है कि लड़की का खूबसूरत ड्रेस। दूसरे में मीनिंग क्या आ रही है, यहाँ पर गर्ल्स ड्रेस की बात आ रही है, यानी कि ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे क्या एम्बिग्विटी आ रही है? ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस से एक मीनिंग ये आ रही है कि वो लड़की ब्यूटीफुल है जिस, और उसने वो कपड़े पहने हुए, दूसरी मीनिंग आ रही है कि उस लड़की का ड्रेस जो है वो ब्यूटीफुल है। आर यू गेटिंग मी? आप लोग की मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए कितनी बारीकी के ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस में ब्यूटीफुल का इस्तेमाल जो है लड़की के लिए भी हो रहा है यहाँ पे आपको, और दूसरा ये है कि उस ड्रेस के दूसरा आपको जो आ रहा है समझ आ रहा होगा कि ड्रेस की बात हो रही है, लड़की की बात नहीं हो रही है। ड्रेस ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस मतलब ये ब्यूटीफुल लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर कि लड़की जो है ब्यूटीफुल, और फिर दूसरा जो इस्तेमाल आ रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स ड्रेस के लड़की ने जो ड्रेस पहना वो ब्यूटीफुल है। अच्छा, थर्ड जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल एम्बिग्विटी, इसके बारे में क्या है कि characterizes its prototypes means ambiguous constructions which depend upon the deeper connections. He points out that these constructions are mostly only ambiguous out of context, क्योंकि ये context से बाहर होती है। One of example is the phrase the love of God. ये एक जुमला है, the love phrase is the love of God. Isolated from any textual relation, it is unclear whether God is the subject or the object in this noun phrase. अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट से हटा लें, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट से हटा लेंगे तो यहाँ पे आपको ये ट्रबल हो सकती है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है।
क्या कह रहे हैं कि वेदर गॉड इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन दिस नाउन फ्रेज, द लव ऑफ गॉड, कि यहाँ पे गॉड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है या ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि थोड़ा चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट से हट जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हमें इसमें समझ नहीं आता कि आया ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली neither categorization is wrong, as many linguists do not distinguish transformation from grammatical ambiguity. So thus transformational ambiguity is a subjugatory of grammatical ambiguity. तो इसको grammatical ambiguity से ताबीर की गई है। चॉम्स्की का नाम सुना होगा आपने, लिंग्विस्ट। ही सेज, क्या कहता है, द शूटिंग ऑफ द हंटर्स, दिस इज द सेम केस एज द गॉड एग्जाम्पल। अनक्लियर कि द हंटर्स आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दिस फ्रेज। अब ये हंटर जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस जुमले के अंदर या इस फ्रेज के अंदर, वो समझ में नहीं आया। द शूटिंग ऑफ द हंटर्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एम्बिग्विटी कहलाती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस थोड़ी सी होती हैं और वो ग्रामर ही की वजह से होती हैं। बहुत जल्दी थोड़ा आई विल टेक टाइम, नॉट टाइम बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट एंड वी हैव ओनली 2 minutes. Scope ambiguity. Scope is the final sort of ambiguity which is caused by the possibility of different semantic scope in a sentence. यानी कि sentence के अंदर मुख्तलिफ semantic scope होते हैं, उससे होता है। To be more precise, there is no ambiguity in single words or the surface. This semantic scope is indefinite due to the other elements. मिसाल के तौर पर qualification and negation. Sentence for is one of the example caused by a qualifier that none of the words have ambiguous. तो यहाँ पे नीचे आपके पास जुमले हैं, उन जुमले में इसको बयान किया गया है, sentence for. उसके बाद नीचे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, उनमें इंशाल्लाह आपको ये स्कोप एम्बिग्विटी की एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की भी मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको लिटरेचर से भी यहाँ मिल जाएंगे, कुछ लिटरेचर से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे मेंडिंग वॉल का टाइटल है, ये पोएम का टाइटल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो ये भी एक एम्बिगुअस टाइटल है। ठीक है, इस तरह कुछ पॉपुलर कल्चर से भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़िएगा इंशाल्लाह। आई विल सेंड यू दिस, आई विल सेंड यू टू योर व्हाट्सएप, तो उसको आप देख लीजिएगा। एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉप इट्स हार्ड कॉपी इंशाल्लाह वेरी सून। इसमें आपके पास 5-6 टॉपिक्स हैं। अब सेकंड जो सेशन होगा तकरीबन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो शुरू होगा, उसमें क्या होगा, जस्ट नोट डाउन, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह प्री सपोजिशन एंड एंटेलमेंट। ये these are again very important things which we need to discuss and related to semantic, they are very important, and I hope you will attend this session as well, and if you have any problem regarding this you can ask me in the next session. Okay, तो भी हम क्लोज करते हैं इसे इंशाल्लाह, we will meet after 10 to 15 minutes.